अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अहमद जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोर दी कॉन्करर। एक नया दिन, एक नई सुबह। वियतनाम के शहर हो ची मिन से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा टूर है यहाँ पर कुची टनल है, जहाँ पर वियतनाम वॉर के दौरान बंकर्स थे, टनल्स थी, जिसमें रहकर वियतनामीज़ ने अमेरिका के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई लड़ी। और इसके साथ यहाँ पर मेकोंग डेल्टा जो है, आज हम उसका विज़िट भी करेंगे। तो आज आप इस व्लॉग में ये दोनों जगह देखेंगे। इस वक्त हमारा टूर जो शुरू हुआ है हो ची मिन से, वो हमने एक टूर कंपनी से टूर बुक किया है और रास्ते में हमने स्टे किया है। एक हैंडीकैप लोग जो हैं, वो एक गवर्नमेंट फैक्ट्री है जिसमें वो हैंडीकैप लोग जो हैं मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं। तो अभी मेरे साथ एक लेडी हैं जो कि आपको हैंडीक्राफ्ट जो बन रही हैं उसका प्रोसेस दिखाएंगी कि वो किस तरह हैंडीकैप जो अफराद हैं वो बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं। Handicap and reflect the form ignorance. Today we explain to you how handicap make the lacquer painting, and now I will show you step by step more clearly. Follow me, please. Before you go to the workshop, I will introduce you production process. This is production process board, and the first step, wood body. You have to choose the wood of bamboo or coconut wood and wrapping cloth. They fabric shop for different temperature. It isn't break or damage. And lining for time, polishing step by step. From the wood body to the polishing, it takes 1 month to finish. And there are 3 ways to make lacquer painting. The first way, hand painting. The second way, inlay eggshell. And the third way, inlay model pearl. And now, I will show you step by step more clearly. Follow me, please. Can you help me? This is the first way, hand painting. After inlay eggshell, inlay model pearl. They polishing, make the picture very smooth, and then they begin drawing on top. They're drawing with color oil, and this is color oil. And you can see after drawing like that. Yeah. They're drawing traditional Vietnam dress. The name is áo dài. And they burn the red because the red is lucky and happiness color in Vietnam. Beautiful. Yeah, next step, please. Yeah, this is the second way, inlay eggshell. They use duck eggshell after baby duck go out. And the church use duck egg because duck egg is stronger and thicker than chicken egg. The white natural color and the brown is burning color. And this is lacquer oil. Lacquer oil from the tree. And they use lacquer oil cover on top of the inside. And then they break it up. After that they use small knife to tap. Tap until the eggshell break tiny. They make this so that the eggshell is flat on the wood. After you lay like that. Wow, beautiful. Yeah, this Nice. one make only eggshell. Amazing. Yeah, next step, please. Beautiful. And this is the third way you lay model pearl. They get a big seashell from deep ocean. If you push the shell under the light, you can see the rainbow color like this. This is a real model pearl. After that, they cut out like that. And then they stand on the stone, make the seashell is flat and thin. And then they begin drawing on top. The last one. After that, they use hand saw to cut following the picture here. After cutting like that. Wow. And then they stick them together. Piece by piece like that. Wow. After that, they lay on the wood. The finished picture. Wow. Amazing. Beautiful. Yeah, next step over there, please. Yeah, and here they polishing. After you lay eggshell, lay model pearl. They cover lacquer on top. You can see the picture under the lacquer here. And then the polishing by wet stone and sandpaper with water only.
First time we use whetstone polishing, and then we use sandpaper polishing again. We polishing until the picture very smooth, about 22 times. Yeah, next step. Yeah, this is the last step, shining. They use car cream and shining by hand. So put only by hand like that. Put until the car cream dry and you feel the hand is hot, more shiny. Before shining and after shining. Yeah, on the product finish here we display the showroom. You can look around. If you like, you can get something support for the handicap. Thank you for your listening. Welcome to our showroom. तो ये वो यहाँ पर सुवेनियर शॉप है जहाँ पर ये सारे जो हैंडीकैप अफराद हैं वो काम करके ये जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उसके बाद उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। प्राइसेस थोड़ी एक्सपेंसिव हैं लेकिन चूँकि मेहनत तलब काम है और बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है, सो इसलिए वर्थ करता है कि यहाँ से कोई ना कोई चीज़ ली जाए और इन हैंडीकैप अफराद को जो है वो सपोर्ट किया जाए। तो चलें अभी हम यहाँ से चलते हैं और अगले अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। कि यहाँ पर ये सब अफराद जो हैं ये बैठे हुए, जैसे आपने सुना, ये सब बैठे हुए ये एग शेल्स के साथ ये चीज़ें बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं। मुख्तलिफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यहाँ पर ये बना रहे हैं, ये एग शेल्स। और उससे आगे आपने देखा कि वो जो सी शेल्स हैं उससे भी बनाते हैं, ये देखिए। और वहाँ पर अगर पॉलिशिंग के बाद ये बिल्कुल एक डिफरेंट शेप इख्तियार कर लेती है। तो बड़ा खूबसूरत और कमाल का काम है यहाँ पर। ये देखिए कुछ आर्ट वर्क यहाँ पर जो तैयार किया गया है हैंडीकैप अफराद की तरफ से, वो यहाँ पर डिस्प्ले पे है। ये आप देखें कि कितना खूबसूरत है। ये सी शेल्स के ऊपर से जो है ना इसको उतार के और छोटे छोटे पीसीस के साथ ये बनाया है। और ये जो चीज़ है ये एग शेल्स हैं, ये सारे अंडे के छिलके से बना हुआ है। और ये भी ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये जो 1976 से यहाँ पर एक फैक्ट्री बनाई गई है। जो इस जंग में माजूर होने वाले अफराद हैं वो यहाँ पर काम करते हैं और वो यहाँ पर ये हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं बड़ी खूबसूरत मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कूची टनल और इस टनल के बारे में अब आपको मैं आगे चल के तफसील बताता हूं। ये तकरीबन 200 किलोमीटर लंबी टनल है और इस टनल में रह के वियतनामीज़ ने जो है वो वॉर लड़ी और इसके इर्द गिर्द इस इलाके में शदीद बमबारी की गई। इस इलाके में ये देखिए, थैंक यू। और इस इलाके में इस टनल के इर्द गिर्द काफ़ी बमबारी की गई, लेकिन वो इस टनल को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो अभी हम यहाँ से एंटर होते हैं नीचे। Alright, near your tour guide information and living turn on the field. Please have me here. Are you ready? Look at the map. The red color area belonging to Tornado during Vietnam War time. The black line inside, tunnel system underground. 2 ton 200 feet long belong to Tornado. Outside red color, middle blue color, big one. They are U.S. Army base during Vietnam War time. Management blue color belong here. They are South Army base during Vietnam War time. South Army American, they went to. They set up the base many around here for stopping or cover people. In the red color cannot out depend on the capital of South Vietnam during Vietnam War time, former Saigon City. And outside, many this color. The pink color, the people here, pink color, people here, red color. Very friendly or family, father, mother, sister, and their children. The American here, they worry the people here. They supply the food or weapon
people here, they're always checking. Daytime, if the people here, pink color, supply the food to weapon, they stop them and catching, put inside the jail. And American, they want the people here, Viet Cong here, come back to home, right? If they see, they come back home, they stop them and catching, put inside the jail. The American, one control pink color, the red color people here can control this. I control pink color, name can near here. The model map of Cushitan underground belonging red color. No, red color. Underground red color. The model map of Cushitan similar like it. The first one, they are bunker. US came Bunker from here to here about almost 2 meters, right? This special bunker hiding. If the American bombing nearby here, the people already getting no collapse. The meeting bunker, everyone. The kitchen bunker, sleeping bunker, and bunker keeping the food and weapon. The fighting bunker. Under bunker, almost 2 meters, the way down, first floor tunnel. First floor tunnel about 3 meters, right? From moving activity, right? Under 2 meters, almost 3 meters, the way down, second floor tunnel. Second tunnel, ready 5 meters, right? That's tunnel, 10 meters, no? The kitchen, cinnamon is, whole keeping smoking. When it smoke out, no play up on the air. If up there, the no blue color they see, right? It's my kitchen. They need oxygen. They need oxygen. The oxygen, ventilation supply for them, right? Many detonation, booby trap. The booby trap. The American never know they start booby trap fighting them. Then it's the first quarter for drinking. Many first quarter for drinking. And some second tunnel reaching the river not far. They go there for 2 hours, pushing the road, but never took water here for drinking, cooking. They go out and portion. Jump here by American. So this is underground. Belong to color. No tree, no people, right? You got a heavy bombing, no? Big small bomb, not far, no? The tunnel. They here for survival. Everybody by hand. No tractor, no cellular equipment, by hand only. Okay, few more information. Now. ये भी आपने प्रेजेंटेशन देखी कि उन्होंने बताया कि किस तरह टनल का जो ये सिस्टम था काम करता था और उसके कितने फ्लोर थे और कैसे किचन था और वहाँ पर आराम की जगह थी, खाने की जगह थी और उसके बाद फिर वेपन स्टोर करने की जगह थी। ये सारी जगह उसने दिखाई और उसके बाद जो नीचे जगह जा रही थी वहाँ से पानी कैसे जाके लेते थे और ये खाना ऐसे तरीके से कुक करते थे कि इसकी स्मोक वगैरह भी बाहर नहीं निकलती थी। और ये जो सारी टनल्स हैं, ये 200 किलोमीटर लंबी टनल थी। इसके इर्द गिर्द सारी सराउंडिंग में अमेरिकन आर्मी थी और ये इस ये देखिए, ये इन्होंने एक ट्रैप बनाया हुआ था कि अगर अमेरिकन यहाँ पर आएँ, इस ज़मीन के ऊपर उन्होंने कवर किया हुआ था कि अगर वो यहाँ पर आएँ तो ये ऐसे करके जो ये जगह थी वो उसमें गिर जाना था उन्होंने और वो नीचे अंदर लोहे के वो बड़े बड़े सुए लगे हुए हैं जिसके अंदर वो गिरते और गिर के मर जाते। तो ये इस तरह का ट्रैप भी इन्होंने बनाया हुआ था यहाँ पर। जी, तो अब हम जाने लगे हैं इस कैमोफ्लेज जगह में। Yeah, 2 hands. Keep it. Raise up higher. Knee. Higher. Slow down, slow down, slow down, slow down. Slow down. और ये हम अंदर बैठ गए आके, कुछ नज़र नहीं आ रहा। Raise up higher. Higher. You stand up by yourself. Raise up there. निकलते हुए ज़रा मुश्किल है। By yourself. Okay, good one. Good one. Yeah? Good one. Okay, ready, my job. Now moving. Okay. You down there. Your eye. Look see the both side, right left side. Over there, the mouth. Connect bunker underground. You down? Yeah. They are connect bunker underground. But you should know belong the fighting camp. Every 200 meter long. 200 meter long. There is the mount. Right left side, 200 belong the right side. More 200 belong right side forward. Because the American soldier from their base to here. Our people underground, where bunker nearby there, right left side, they out here, they out. More fastly. जी, तो अभी जिस जगह से पहले मैं एंटर हुआ था वहाँ से उन्होंने बताया कि जो टनल्स का यहाँ बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ था। तो इनको ये जो टनल्स हैं एक 5 मीटर नीचे है, एक 10 मीटर नीचे है। तो इतनी डाउन जब टनल थी तो इनको वहाँ ऑक्सीजन चाहिए होती थी और ऑक्सीजन के लिए उन्होंने ये इस तरह की जगह बनाई हुई थी
और इसके अंदर ये बारीक बारीक छोटे छोटे सुराख बनाए हुए थे और यहाँ से वो बनाने के बाद ये मिट्टी के साथ इन्होंने इसको ना लेप करके तो ये चीज़ पहाड़ी की तरह बना दी और यहाँ से उनको ऑक्सीजन नीचे जाती थी। लेकिन चूँकि बाहर यहाँ सारे अमेरिकन मौजूद थे और वो ढूंढते फिर रहे थे इन लोगों को, वो डॉग्स के साथ आते थे स्मेल करने के लिए। तो क्योंकि लोग नीचे थे और डॉग्स जब यहाँ आते थे और अगर किसी को स्मेल आ जाती थी कि यहाँ पर नीचे कोई बंदा है तो वो भौंकता था कुत्ता। तो उससे बचने के लिए वियतनामीज़ ने क्या किया कि उन्होंने अमेरिकन फ़ौजियों की जो वर्दियाँ थीं उन वर्दियों के छोटे छोटे पीस करके उन वर्दियों के पीसों को इस जगह के अंदर साइडों पे रख दिया ताकि वो जो अमेरिकन डॉग्स थे वो यूज़ टू थे अपने फ़ौजियों की स्मेल के, तो वो फिर भौंकते नहीं थे। तो कितना क्लेवरली इन लोगों ने काम किया। और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि गार्लिक, ऑनियन और काली मिर्च इसका मिक्सचर बना के तो कई जगह पे उन्होंने यहाँ पर अंदर लगा दिया और वो स्मेल करने की वजह से जो कुत्ते थे वो भौंकते भी नहीं थे और बल्कि भाग जाते थे। उनका नाक काम करना बंद कर देता था, स्मेल की जो उनकी सेंस थी वो ख़त्म हो जाती थी। तो इस तरह यहाँ रह के इन्होंने ये गोरिल्ला वार लड़ी। और ये यहाँ पर देख सकते हैं ये सब टनल्स हैं, ये इसके नीचे नीचे सब टनल्स हैं, ये रास्ते बने हुए हैं। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। अच्छा, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लोग नीचे छुपे हुए थे या सोल्जर्स जो वियतनामीज़ थे वो सारे बच गए। यहाँ पर तकरीबन 40,000 के करीब जो अफराद थे, लोग नॉर्मल सिविलियंस भी और फौजी भी, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्योंकि कई जगह पर जब अमेरिकन डॉग स्मेल करते थे और उनको स्मेल आ जाती थी तो वो फिर केमिकल वेपन जो है वो उस सुराखों से नीचे फेंकते थे, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। उन सुराखों से स्प्रे करते थे कि यहाँ पर किसी बंदे की मौजूदगी है और वो जो केमिकल वेपन यानी जो गैसेस थी वो नीचे जाती थी, तो उससे फिर लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है उनको वो जाँ बहक हुए, उनकी वफ़ात हुई। तो ये बड़ी एक तकलीफ़देह मौत भी थी, लेकिन कुर्बानियाँ दे के इस कौम ने अपनी धरती माँ की हिफाजत की। जी, यहाँ पर इन्होंने कुछ एक ये स्टैचूज़ बनाए हुए हैं और दिखाया है कि जब बॉम्बिंग नहीं हो रही होती थी तो उस वक़्त फिर जो यहाँ के सोल्जर्स थे वो क्या करते थे। तो उस वक़्त फिर ये ग्रीन कलर के कपड़ों में होते थे जो कि इनको कैमोफ्लाज कर देता था, क्योंकि ये सारा जंगल है। और ये यहाँ पर बाहर बैठ के अपनी विस्की वगैरह पीते थे, कुछ म्यूज़िक सुन लेते थे, ख़त लिखते थे फैमिली को। और वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है स्टैचू, वो वहाँ इस तरह करके, तो ये इन्होंने एक सीन क्रिएट किया है कि यहाँ पर इस तरह की लाइफ थी। जब बॉम्बिंग नहीं हो रही होती थी तो फिर इस तरह कुछ देर के लिए ये बाहर आते थे और रिलैक्स करते थे। मैंने आपको बताया था ना जो हवा के लिए नीचे सिस्टम है, वो देखिए वो बुत्ती सी बनी हुई है मिट्टी की, इस तरह की आपको जगह जगह नज़र आएंगी। और ये वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रही थी इन टनल्स को, जो कि 5 से 10 मीटर नीचे जो तीसरा चैम्बर था वो 10 मीटर नीचे है। देखें, ये देखें, यहाँ पर भी आपको सुराख ये नज़र आ रहा है, ये वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ये इसके नीचे पूरा एक जाल बिछा हुआ है। जब यहाँ अमेरिकन अटैक कर रहे थे तो यहाँ पर इन्होंने वियतनामीज़ ने बहुत सारी लैंड माइन्स भी बिछाई हुई थी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो सूची टनल का एरिया है, इसमें सारे रेफ्यूजीज़ ये जो वियतनामीज़ छुपे हुए थे और इसके इर्द गिर्द से अमेरिकन ने इनको पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। तो ये जो टैंक है ये अमेरिका का टैंक है, ये यहाँ पर आया और ये तबाह हुआ। ये देखें, यहाँ पर उसी तरह ही पड़ा हुआ है जैसे ये था, और ये वापस नहीं जा सका क्योंकि यहाँ पर लैंड माइन्स थी बिछी हुई, तो ये यहीं पर ही रह गया। ये देखिए, Jamaican, they never know they step down. Đi con. Oh my God! 1, 2, 3, 4. Very sharp. Not closing, keeping the Jamaican people inside. Second one, they closing on the top. Uncle Lin who step down, the opening. No? Welcome Jamaican down here and keeping by the sharp of Bermuda out here. Number 3, rolling cap. The big quiet who step out. This one, you know, rolling, carry on off the sharp of thickness, planning the people who down. This one, rolling cap. This one. Có bảo hút thuốc kìa, kêu tắt nữa đi. The window check, everybody. Not window closing. Window closing. On the top, cover. Who step down? Window opening. And the door fell down, right? Now many kept keeping inside, no way out. The chair check, everyone. Chair check. The opening, the opening, yeah. Who step out? The closing. People inside, by many now check. And they did the hole. Chờ chút đi, chờ. And did the whole 1 meter deep. Now they drop this one inside. On the top cover, who step down? Step inside, keeping by many nail cap. No.
Which one, everybody? This one. This one. Scissor trap, right? Any side, right left side. No, who step down here? No, keep balancing. Fell down and then stop on it. The fighting who down. This is a scissor trap, everyone. ये मुख्तलिफ ट्रैप हैं जो बनाए थे अमेरिकन फ़ौजियों के लिए यहाँ पर इन्होंने, और ये आपने देखा कि सारे ट्रैप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक दफ़ा इंसान का पाँव आ जाता तो उसका बचना नामुमकिन था। Look at here. ये कील लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये देखें जो अंदर चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। Look at here. One of many small one. They jump the land. You don't push it no. American no step down. Many trap there. No big problem. They jump the land. Waiting American helicopter jumping down. No, they never know step down here. I call their personal trap. No, their dancer for American. Everybody, remember the pink color. Pink color I show you. Yeah. Pink color and red color. They are very friendly. The American never want the people red color come back pink color. Always coming for checking the house pink color. If American police knock the door, pink color house, no, the owner open. If they use strong kick, no, knock out the door, knock out the door, knock out the door, knock out the door. It's behind the door, behind the door, behind the door. You mean fighting American, the door, dancer. ये मिलिट्री वर्कशॉप है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह जो अपने हथियार हैं ये तैयार किया करते थे। इसको मिलिट्री वर्कशॉप का नाम दिया इन्होंने। ये यहाँ पर बम पड़े हुए हैं, ये देखें ये बम की तैयारी हो रही है, और वो वहाँ पर भी कुछ बनाया जा रहा है। ये यहाँ पर बम के टुकड़े और ये कुछ हैंड ग्रेनेड्स वगैरह जो हैं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये यहाँ पर नेशनल डिफेंस शूटिंग का ये क्लब है, और यहाँ पर आपको शूटिंग की ऑप्शन दी जाती है। यहाँ पर आप 10 बुलेट ले सकते हैं, जो कि एक बुलेट जो है वो 60,000 डोंग की है, और उसके बाद आप यहाँ पर शूटिंग करके तो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर रहे एक्टिविटी। ये यहाँ पर ये शॉप बनी हुई है, सुवेनियर है, और यहाँ से आप जो बुलेट्स हैं वो बाय करके यहाँ शूटिंग रेंज में शूट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक एक्टिविटी है। ये अब हम एक फ़ाइटिंग बंकर के अंदर जाने लगे हैं, और ये हमें यहाँ पर जो लोकल सोल्जर हैं वो हमें अंदर लेके जाएंगे। ये 20 मीटर लॉन्ग है, और उन्होंने कहा कि हम अगर आपको 20 मीटर आपने करनी है तो वो कर लें, इससे लंबी भी आप जा सकते हैं, लेकिन हम 20 मीटर में ही जाएंगे। तो हम ये देखें, हम पहले स्टेप पे बंकर में नीचे आ गए, और यहाँ से अब हम फर्दर डाउन नीचे जाएंगे। यहाँ से हम अंदर आए हैं। ये अब हम इस टनल में एंटर हो चुके हैं। ओह, ये देखिए अब हम मज़ीद कैमरा अपनी तरफ कर लेता हूँ। यहाँ से अब हम एक स्टेप और डाउन हो गए हैं। यहाँ पर हम खड़े होकर नहीं चल सकते, बल्कि हम बैठ के ही चल रहे हैं। ओए होए होए, नज़ारा जी नज़ारा। ये यहाँ पर लिटरली बैठ के चला जा रहा है सिर्फ। अगर आप इस डार्क में आगे देख सकते हैं तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक रास्ता यहाँ से लेफ्ट पर निकल रहा है। यहाँ से हम फ़ोन की लाइट से जो है वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा नज़र आए क्लियर। ये देखिए यार, हम ये शॉर्ट सा रास्ता लेके हम बस बाहर आ गए हैं, दिखाना मकसद था। ये बाहर का रास्ता है, और ये यहाँ से आगे 40 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर तक, और फिर 200 मीटर तक ये टनल आगे जाती हैं इस तरह। और वहाँ पर फिर आगे अगला एग्ज़िट 40, 60 और 100 और 200 के बाद आना था। हमने यहाँ से ये 20 मीटर के बाद ही ये एग्ज़िट ले लिया है। ये हम बाहर आ गए यहाँ से, ये देखिए जी। तो हम इस वक्त एक मेडिकल बंकर में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मेडिकल का इलाज किया जाता था, और इस बंकर में अब हम मज़ीद नीचे जाने लगे हैं। ये एक और बंकर है। ओह,
ये पीछे वाले बंकर से थोड़ा सा बेहतर है और थोड़ा सा ऊंचा है हाइट में, तो ये बिल्कुल छोटा सा है। और hiding the bomb, right? The bomb being यहाँ पर वो Russia behind them, okay. अपने Bomb. बॉम्ब यहाँ पर हाइड करते थे। पीछे आपने मेडिकल वाला देखा असिस्टेंस, यहाँ पर ये अपने बॉम्ब्स का स्टॉक करते थे। अब यहाँ से हम फर्दर आगे जाते हैं। ओह, ये स्टेप्स बने हुए हैं। इन स्टेप्स से हम मज़ीद डाउन आ गए। हमारे इस ग्रुप में हम 3 लोग हैं। मेरे साथ इंडिया से ज़ुबैर भाई हैं और मेरे बैक साइड पे एक रशियन दोस्त है जो कि रशिया से हैं, और वो इस वक्त मेरे पीछे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। और ये अब हम फिर ऊपर आ गए। ये वो मेरे रशियन एक I tell you the truth, right? दोस्त है। Because you pay per view, you're coming. I don't know you come back or not. No, I want to open more for you. No, get experience. They are a group. No, they never take the good people here. Only they are the local people. ये मीटिंग बंकर है, यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी। और इसके बाद आगे I will किचन wait outside for you, okay? किचन ओके Yes, yes. ओके ओके। Let अब यहाँ से हम जो नेक्स्ट पार्ट है फर्दर डाउन उसमें जाने लगे हैं। और ये किचन और डाइनिंग एरिया का बंकर नीचे, हम उस पार्ट में जाने लगे हैं जहाँ पर किचन और डाइनिंग एरिया था। आपके ऊपर आगे हालत देख सकते हैं, बिल्कुल कमर डाउन, और तकरीबन जो कमर इतनी डाउन है कि आपकी हिप्स जो है वो इस बंकर की छत के साथ लग रही हैं। यहाँ से अब हम बाहर आ गए और ये किचन एंड dining bunker. डाइनिंग एरिया और किचन का एरिया। ये डाइनिंग था, अब हम किचन बंकर में जाते हैं आगे। The kitchen bunker. ये देखिए, ये यहाँ पर किचन है और यहाँ पर ये लकड़ियाँ जला के ये तंदूर बना हुआ है, साथ लकड़ियाँ पड़ी हैं स्टॉक, और यहाँ पर खाना बना करता था सारे फौजियों के लिए और लोगों के लिए। यहाँ से अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, Tabuka. यहाँ पर इन्होंने खाने के लिए दिया है कि जब खाना वगैरह नहीं होता था तो यहाँ पर ये इस तरह ये खाते थे। मैं देखता हूँ क्या चीज़ है। शक्करकंदिया, ये शक्करकंदिया जिसको ये लोग खाते थे शुगर और नट्स के साथ लगा के। इसको स्वीट पोटैटो कह सकते हैं। ये यहाँ पर उन्होंने बना के रखी हुई हैं और जो लोग यहाँ विजिट के लिए आ रहे हैं Okay, wait उनको ये दे come रहे back here. You want more? हैं। Mười khách. Okay. ओके, One more, I send it back now. 10. Okay, huh? Waiting here. ओके। ये इतनी टनल्स में से बाहर निकलने के बाद आप हालत देख सकते हैं, और ये इसकी शदीद ज़रूरत थी अभी। You see that the kitchen and water ये well in the corner. शक्करकंदी इनको फौरी एनर्जी जो है वो देती थी। In the corner. और ये उनकी टैक्टिक्स देखें कि अगर आपके पास खाना नहीं है, फूड नहीं है, चावल तैयार नहीं हुए हुए, राइस तैयार नहीं हुए हुए, तो ये शक्करकंदी उबाल के खाते थे जो आपको फ़ौरन एनर्जी दे देती थी। Blind ये देखें, वहाँ पर किचन था और उसकी जो स्मोक है उन्होंने यहाँ साइड से निकाली है और इस तरह पत्तों के साथ हल्की हल्की निकाली है कि यहाँ से धुआं बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए और पता ना लग सके फ़ौजियों को, अमेरिकन को, कि यहाँ पर कुकिंग हो रही है। तो इतने स्मार्ट थे वो कि उन्होंने वहाँ से इसका धुआं बहुत स्लोली निकाला बाहर। इस जगह पे जहाँ हम चल रहे हैं सुरह सारी, इस पूरे जंगल में, इस पूरे इलाके में नीचे टनल्स ही टनल्स हैं। अब हम इस कूची टनल के साइट एरिया से बाहर आ गए हैं और
बहुत ही एक ज़बरदस्त और मुनफरिद तजर्बा था कि कैसे यहाँ पर गुरिल्ला वार लड़ी इन्होंने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप वियतनाम आएँ तो आप ज़रूर इस जगह पर आएँ, विज़िट करें, देखें। सिर्फ़ ये है कि ये जो टनल्स हैं ये लंबाई में काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपको मौका मिले, अगर आपका हार्ट का मसला हो, ऑक्सीजन का मसला हो, फेंट हार्टेड आप हों, तो आप ज़्यादा लंबा टूर मत लें। आप बिल्कुल 10-20 मीटर्स वाला जो है वो रास्ता लेके तो आप बाहर आ जाएं, क्योंकि नीचे ह्यूमिड भी काफ़ी था, ऑक्सीजन भी कम थी और उसकी वजह से सांस चढ़ जाता है। और दूसरा ये कि आप बेंड होके आ रहे होते हैं, आपका सारा बोझ जो होता है वो आपकी थाइज़ के ऊपर होता है और लेग्स पे होता है। दैट्स इट। तो बहरहाल अच्छा तजर्बा था। उम्मीद है आपको ये मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।